नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। आरटीसी मुलाजिमीन की रियासतगीर हड़ताल के नतीजे में हैदराबाद मेट्रो रेल के मुसाफिरीन की तादाद में भारी इजाफा हुआ है। कल हफ्ते को 3,65,000 अफराद ने मेट्रो ट्रेन के जरिए सफर किया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वीकेंड के दौरान बिलमुम 2,70,000 मुसाफिरीन मेट्रो ट्रेन से इस्तेफादा करते हैं। आरटीसी की हड़ताल के सबब मेट्रो ट्रेन ने अपनी सर्विस का सुबह 7 बजे के बजाय 6 बजे ही आगाज कर दिया था। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी के बाद एक अहम तब्दीली में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक 15 रुकनी वफद ने आज पार्टी के महरूज कायदीन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। वफद ने रियासत के हालात और आने वाले बल्दी इंतखाबात पर बातचीत की। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने वफद को इन महरूज कायदीन से मुलाकात की इजाजत दी थी। 5 अगस्त को दफा 370 की बर्खास्तगी से एक दिन कबल उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद पार्टी कायदीन ने उनसे पहली बार मुलाकात की है। उमर अब्दुल्ला ने, जिनकी दाढ़ी बढ़ गई थी, पार्टी कायदीन के साथ एक सेल्फी भी ली। उनसे मुलाकात के बाद वफद फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात के लिए उनकी रिहायशगाह रवाना हुआ। वफद के कायद देवेंद्र सिंह राणा ने सहीफा निगारों को बताया कि सियासी अमल के आगाज से कबल इन कायदीन की रिहाई बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन से एक किस्म की बेचैनी पाई जाती है। एक पार्टी की हैसियत से उनका ख्याल है कि किसी भी सियासी अमल और रियासत में जमहूरियत की बहाली के लिए तमाम कायदीन को रिहा किया जाना चाहिए, खा वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हों। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत के अवाम की तरक्की और फिरकावाराना मांगी की बरकरारी के लिए काम करने का एक रिकॉर्ड रखती है। देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि उनकी पार्टी की आमिला आइंदा की हिकमत अमली के बारे में फैसला करेगी। Political mainstream parties of Jammu, we organized a meeting in Jammu where it was decided that we write to the Honorable Governor, Shri Satyapal Malik ji, to seek his permission to allow us to have an audience with the President of the party, Dr. Farooq Abdullah, and Mr. Umar Abdullah. On the permission being granted, a 15-member delegation, all of ex-legislators of the Jammu and Kashmir National Conference belonging to the Jammu division came today morning to Srinagar, and we met Mr. Umar Abdullah first and then Dr. Farooq Abdullah now. We are happy that they are both well and in high spirits. Of course, they are pained and anguished about the developments, particularly the lockdown of the people, and we as a party appeal that for the political process to start and the democracy to revive in Jammu and Kashmir, the political detainees anywhere and everywhere, whether from the mainstream political parties or otherwise, who have no criminal record, may be released to initiate the process, and the hearts and minds of the people of Jammu and Kashmir are one. So far as the National Conference is concerned, it has a legacy, it has a history, a checkered track record, and the National Conference will continue to strive for the welfare of the people of Jammu and Kashmir, and shall continue to work for communal harmony, brotherhood, togetherness, and keep the secular fabric of Jammu and Kashmir shining as ever. What about the development? Anything about the development? What about the step for the elections? Sir, what about the step for the elections, like BDC elections? Any sort of steps further? See, there's a complete lockdown. The political mainstream parties, all members are out. If the political process has to start, then these people have to be released. Now look at the case of National Conference. If 380 people have to, even if we want to contest the BDC elections, the 380 panchayats that exist, if we have to get the people to sign the mandate has to be signed by the president of the party, Dr. Farooq Abdullah.
who has been unfortunately detained under PSA. I mean, I think that putting PSA on Dr. Farooq Abdullah is by itself. If the leaders and members will be released, will you participate in the elections? Let them be released, and then the working committee of the party will meet. We will all meet together and discuss and formulate a strategy for the future. रियासत में आरटीसी की हड़ताल की वजह से लोग अब ट्रेनों के सफर को तरजीह दे रहे हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे पहले ही से दशहरा त्योहार के पेश नजर कई मकामात से खुसूसी ट्रेनें चला रही है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन का हुजूम देखा गया। कुछ लोग तो अपनी ट्रेन के इंतजार में घंटों प्लेटफॉर्म पर ही गुजार दिए और इनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहा। सिकंदराबाद स्टेशन से गुज़श्ता 2 दिन के दौरान 1,80,000 अफराद ने सफर किया। पुलिस ने कुशाईगुड़ा बस डिपो के रूबरू आरटीसी के खातून मुलाजिमीन को बदकम्मा रक्स करने से रोक दिया। इस पर इन खवातीन और पुलिस के दरमियान तल्ख बहस हो गई। इन मुलाजिमीन में बेशतर कंडक्टर्स और उनके अरकान खानदान शामिल थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मूसी प्रोजेक्ट के मुआयने के लिए एक टीम को रवाना करने की हिदायत दी है। ये टीम चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में बरसरेकार सेक्रेटरी समता सबरवाल, इंजीनियर इन चीफ इरिगेशन मुरलीधर राव और दूसरों पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी से बातचीत के बाद चीफ मिनिस्टर ने यह फैसला लिया। वाज़ेह है कि कल जिले नलगुंडा में मूसी प्रोजेक्ट का एक दरवाजा टूट गया, जिससे बड़ी मकदार में पानी का अखराज अमल में आया। करीमनगर के अम्बेडकर स्टेडियम में 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक मुनक्किद होने वाली आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के लिए मौसर इंतजाम किए गए। 33 अजला से जुमला 46,734 उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्को है। उम्मीदवारों को 250 अरकान के साथ मुख्तलिफ बैचों में तकसीम किया जाएगा। ज्वाइंट कलेक्टर जीवी श्याम प्रसाद के मुताबिक रैली का आगाज सुबह 3 बजे होगा, जिसके दौरान दौड़ और जिस्मानी टेस्ट होंगे। जिस्मानी टेस्ट कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के लिए सिकंदराबाद में तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किए जाएंगे। दशहरा त्योहार और बदकम्मा के पेश नजर जेएचएमसी ने शहर के तारीखी मकामात को बरक़ी खमखमों से सजाया है। टैंक बंड जबरदस्त सजावट की वजह से आवाम की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पूरे टैंक बंड पर लाइटिंग लगाई गई है और मुजस्समों के करीब जहां खवातीन रक्स कर रही हैं, उनकी सहूलत की खातिर फ्लड लाइट्स लगाए गए हैं। रियासती हुकूमत ने एक अनोखी शुरुआत करते हुए सरकारी मदारिस में 6ठी जमात से 10वीं जमात तक के तलबा को डिक्शनरियाँ फराहम करने का फैसला किया है। डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन के ज़राए के मुताबिक 14 लाख तलबा को अंग्रेजी से तेलुगु और तेलुगु से अंग्रेजी की डिक्शनरियाँ मुफ्त तकसीम की जाएंगी। ये डिक्शनरियाँ टेंडर के जरिए हासिल की जाएंगी। डिक्शनरियों के अलावा अच्छी अटेंडेंस रखने और इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा तालिबात को बैस्करें भी दी जाएंगी। तेलंगाना कोऑपरेटिव बैंक ने तलबा के लिए साइकिलें खरीदने 5 लाख रुपए का अतिया दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि उसने जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मुबैना दहशतगर्द तकरीबी कार्रवाइयों का मंसूबा बना रहा था। उसके पास से असला भी बरामद हुआ। इसकी मूवमेंट है इस एरिया में, चंसुमा करालहार के एरिया में, और अकॉर्डिंगली जो है हमने जो है कि यहाँ पर स्पेसिफिक जो है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर नाका लगाया, जिसमें हमारी जो है बारामूला पुलिस और इसमें 52 RR प्लस जो है हमारी 53 जो है CRPF की यहाँ पर जो है लोकल यूनिट है, और एक जॉइंट नाका में जो है इसको जो है पकड़ा, और जो है इसकी पर्सनल सर्च से जो है एक पिस्टल और एक मैगजीन और एक 17 जो है वो लाइव राउंड जो है इसमें पकड़े गए हैं। तो ये जो रिकवरी हुई है उससे ये लगता है कि जो है ही वाज गोइंग टू कमिट सम काइंड ऑफ ए कॉप किलिंग। तो अभी जो है इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जहां तक इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड की बात है, इसकी जो मिसिंग रिपोर्ट जो है वो लॉन्च हुई थी 23 अगस्त को, और ये जो है रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव आज 54 बरस के हो गए। टीआरएस पार्टी कारकुनों ने उनकी सालगिरह के मौके पर अमीरपेट में एक जबरदस्त तकरीब मुनक्किद की, जिसमें वजीर मौसूफ ने एक केक भी काटा। उनकी रिहाइशगाह पर मुबारकबाद देने वालों का सुबह से ही तांता बंधा हुआ था।
वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री को मुबारकबाद देने वालों में रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल, अर्कान असेंबली जी वेंकटेश, एम गोपीनाथ वगैरह काबिल जिक्र थे। दशहरे के सिलसिले में आरएसएस ने आज धूलपेट मंगलहाट से एक बाइक रैली निकाली, जिसमें हिंदू तंजीम के सैकड़ों कारकुनों ने, जो खाकी चड्डी, व्हाइट शर्ट और काली टोपी पहने हुए थे, मुख्तलिफ इलाकों में गश्त लगाई। प्राणीपुर के एक फंक्शन हॉल में इस रैली का अख्तिताम अमल में आया। गोशामहल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने हिंदुओं से अपील की कि वो मुल्क की खिदमत के जज्बे के तहत आरएसएस में शामिल हों और मुल्क की सलामती और उसकी तरक्की के लिए काम करें। राजा सिंह ने सदर मजलिस को रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सऊदी अवैसी और कायद मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी को भी आरएसएस में शामिल होने का मशवरा दिया। धर्म के प्रति एक जागरूकता पैदा करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। आज अनेकों शाखाएं लगाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में बहुत सारे नौजवानों में देशभक्ति, धर्म भक्ति एवं समाज किस ओर जाना चाहिए और समाज का नौजवान, देश का नौजवान किस प्रकार से देश की रक्षा के लिए तैयार हो, ऐसी सोच रखने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के हित में कार्य करती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को जोड़कर मैं एक देशवासी हूँ, ये मेरा देश है, ऐसी भावना हर वो व्यक्ति में जगाती है। तो दूसरी तरफ ओवैसी जैसे देश के गद्दार ये कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करो और अनेकों प्रकार का कमेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर किया जाता है। मैं असदुद्दीन ओवैसी और उसके बागी यानी देशद्रोही छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को ये कहना चाहूँगा कि तुम लोगों को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में आज सम्मिलित होने की आवश्यकता है, ज्वाइन होने की आवश्यकता है। जब तक तुम दोनों भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित नहीं होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के हित में कार्य करती है या देश के विरुद्ध कार्य करती है, तभी तुम्हें पता चलेगा। मैं तो तुम दोनों भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि तुरंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा तुम लोग ज्वाइन करो, तब तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में देश के प्रति भावना जगेगी। आज छोटा भाई और बड़ा भाई देश के विरुद्ध बात करते हैं, भारत माता की जय नहीं कहते, वंदे मातरम नहीं गाते। भारत माता की जय क्यों कहा जाता है और वंदे मातरम क्यों गाया जाता है, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में तुम जाओगे। वहीं पर देश के प्रति, धर्म के प्रति ज्ञान मिलता है और देश के विरुद्ध कोई भी ताकत हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसी संस्था है जब प्रणाम भी करती है और लाठी उठाकर देशद्रोहियों को देश से बाहर भी भगाना जानती है। तो मैं जितने भी भारत देश के देशद्रोही है, जो भारत माँ की जय नहीं कहते, जो वंदे मातरम नहीं गाते, उनको मैं कहना चाहूँगा, आज का भारत भारत माता की जय कहने वाला भारत होना चाहिए। आज का भारत वंदे मातरम गाने वाला ऐसा भारत होना चाहिए। जो भी व्यक्ति भारत माता की जय या वंदे मातरम नहीं गाएगा, समझो उनकी भारत देश में कैद नहीं और उनको भगा कर या पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा या नहीं तो मूरों के पास भेजा जाएगा। मैं असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूँगा कि हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई झगड़ा कराना छोड़ दे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा तुरंत ज्वाइन करे, तभी तुम्हारे मन में देश और धर्म के प्रति जागरूकता पैदा होगी। धन्यवाद। साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन के हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मुंतखब होने पर एक तहनीती तकरीब सैयद गौस खामोशी ट्रस्ट और टीम रूबरू की जानिब से आजम फंक्शन हॉल मोगलपुर में मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुस्लिम लड़के और लड़कियों के रिश्तों का प्रोग्राम रूबरू का एहतमाम भी किया गया था। टीम रूबरू के सदर मोहम्मद फारूक ने खैर मकदम किया। बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने इदारे की सरगर्मियों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद गौस खामोशी ट्रस्ट और टीम रूबरू की जानिब से 3.5 साल से आज़म फंक्शन हॉल मोगलपुर में अपनी नवियत का एक अनोखा प्रोग्राम रूबरू रिश्तों का प्रोग्राम चल रहा है। और ये प्रोग्राम शुरू करने की अहम वजह यह है कि हैदराबाद में यकीनन लाखों की तादाद में लोग रहते हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम मैट्रिमोनियल के लिए बहुत सारे मसाइल थे और ऑफिसर्स वाले जो है इस्तेसाल कर रहे थे और घरों में जो मुशाता जा रहे थे वो लोग जो है पैसे लेकर जो है बाज़ाब्तगी से विज़िट कर रहे थे, लेकिन जो है रिश्ता तय नहीं हो रहा था। उसी दर्द को महसूस करते हुए हमारे ट्रस्ट के लोगों ने मशवरा किया कि क्यों ना हम ये काम का आगाज़ करें और अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल पहले ये काम का आगाज़ किया गया।
जौक दर जौक लोग आते गए और कारवान बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 136वां प्रोग्राम तकमील हो रहा है और आज के प्रोग्राम में हिंदुस्तान के क्रिकेट के उफ़क़ पर चमकते हुए सितारे मोहम्मद अज़हरुद्दीन जो क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हैं। आज हमने उनका इस्तकबाल किया, तहनीत की और उन्होंने भी हमारे साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और आपकी इत्तला के लिए या हमारे सुनने वाले नाजरीन के लिए कि ये प्रोग्राम अपनी नवियत का अनोखा प्रोग्राम है। सुबह 11 से 5 बजे तक हर इतवार को बिला नागा मुनक़िद होता है। इस प्रोग्राम में टोकन के तौर पे सिर्फ 200 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं और 3 महीने का कार्ड बना कर दिया जाता है और रिश्ता तय होने पर सिर्फ दुआ की मुतालबा किया जाता है। 1 रुपये का जो है सेटलमेंट फ़ीस यहाँ पर नहीं है। और आपकी इत्तलात के लिए 4,500 लड़कों के बायोडाटा यहाँ मौजूद हैं और 5,500 लड़कियों के बायोडाटा मौजूद हैं। और ख़ास बात यह है कि 90% पढ़े लिखे लड़के और लड़कियाँ मौजूद हैं, जिससे हमारी तालीमी काबिलियत के इजाफे का इम्कान किया जा रहा है और बहुत खुशाइन बात है ये। और 3.5 साल में 4,600 से ज़्यादा रिश्ते तय हो गए हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। हमारे पास कोई भी प्रोफेशनल मुशाता नहीं है, सब लोग सोशल वर्कर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ नीयतों को देखकर हमें कामयाबी दे रहा है और रिश्ते बहुत जो है ज़्यादा तादाद में यहाँ पर फिक्स हो रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से, आप मीडिया के पर्सनस की वसात से ये कहना चाहूँगा कि आप इधर उधर पैसे खर्चा करने के बजाय आज़म फंक्शन हॉल मोगलपुरा हर इतवार को आ जाइए और आपका काम सिर्फ 200 रुपये में रिश्ता तय हो जाएगा। और दूसरी शादी के भी बहुत सारे रिश्ते मौजूद हैं, वो मंगल के दिन जोहर से असर मुनक़िद होते हैं। आप यहाँ पर आइए और आपके मतलूबा लड़का लड़की आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। एक छत के नीचे 11,000 रिश्ते एट ए टाइम मौजूद हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक मरतबा आप विज़िट करिए और तमाम ट्रस्ट के लोग हमतन गोश यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ पूरे तंजीमा यहाँ पर साथ देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम इंतहाई कामयाबी के साथ में चल रहा है। और आप लोगों से हम दुआ का मुतालबा करते हैं कि ताकि ये प्रोग्राम आगे बढ़े और शहर के दीगर हिस्सों में फैले, डिस्ट्रिक्टों में फैले इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने आज मासापटेंग में वाक़े महाकाली मंदिर में पूजा की और देवी को तलाई ताज का तोहफा दिया। इस मौके पर उनके अरकान खानदान भी मौजूद थे। वज़ीर लेबर ने रियासत के अवाम को दशहरा और बदकमा की मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार उनकी जिंदगियों में खुशियां लाएगा। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात में पार्टी की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आज मुंबई रवाना हुए। उनके हमरा नाना नगर के कॉर्पोरेटर नसीरुद्दीन, गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खान पठान, लंगरौस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजीरुज़्ज़मा सिद्दीकी और दूसरे मजलिसी कारकुन भी हैं। वाज़ेह रहे कि मजलिस महाराष्ट्र के 288 रुकन असम्बली के चुनाव के लिए जो 21 अक्टूबर को मुकर्रर हैं 52 असम्बली हल्कों में मुकाबला कर रही है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सऊदी अवैसी पहले ही से महाराष्ट्र में बड़ी सरगर्मी के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। शहर में आज से पहर जबरदस्त बारिश ने आम जिंदगी को फिर एक बार मफलूज कर दिया। मीरपेट, सरूनगर, चेतनापुरी, दिलसुखनगर, एलबी नगर, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाने की इत्तलात मिली है। बल्दिया अमले ने फौरी हरकत में आते हुए पानी की निकासी का काम शुरू कर दिया। याकूतपुरे का जफर रोड तालाब में तब्दील हो गया था। बल्दिया के इमरजेंसी स्क्वाड ने ताखिर से सही लेकिन वहां पहुंचकर पानी की निकासी का काम अंजाम दिया, जिससे लोगों ने राहत महसूस की। बदकमान नवरात्रि के शुभ अवसर मौके पर तेलंगाना राष्ट्रीय गौली समाज की तरफ से कल विवेक वर्धनी कॉलेज में
डांडिया का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन भी शरीक थे। मैं विनोद औंडेकर, तेलंगाना गौली समाज, राष्ट्रीय गौली समाज का जो है मैं सेवक हूँ और इसी प्रकार आज का कार्यक्रम तेलंगाना राष्ट्रीय गौली समाज की ओर से रखा गया है और इसी प्रकार हम हर साल अब से 3 साल से जो प्रोग्राम करते आ रहे हैं और आगे भी जो है इसका जो प्रोग्राम हम करेंगे। इसमें जो है हमारे सभी भाइयों का सहयोग है, समाज बंधुओं का, और इसी प्रकार मैं सभी से धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं और आगे भी इसी प्रकार हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा और इसमें हम जो है हमारे समाज के सहयोग से जो है हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आगे हम जो है हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी और इसी प्रकार ध्यान दे, क्योंकि जो ये कार्यक्रम हम 3 साल से करते आ रहे हैं लेकिन जो कोई भी हमको सहयोग नहीं मिल रहा है समाज को, तो इस समाज के सहयोग के लिए हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे सीएम साहब से, तेलंगाना के जो सीएम साहब हैं उनसे, और हमारा सब समाज यहाँ कम से कम 200 से 300 सालों से जो यहाँ पे रहते आ रहा है लेकिन आज तक उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। आगे भी जो हम इसी प्रकार कार्यक्रम करते हुए उनको रिक्वेस्ट करते जाएंगे जब तक वो हमारी ओर देखते नहीं। हमारी एक आशा है जो उन्होंने हमको जो एक बार आश्वासन भी दिया था, शायद उनके जहन में है या नहीं, ये हमारे समाज की ओर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है वो हमारी ओर थोड़ा अपना ध्यान दे, हमारे समाज को सहयोग करे। यहाँ हमारे को काफ़ी जो है तकलीफ़ें होती है इस प्रकार प्रोग्राम करने के लिए। हमारे को जो है किराए का जो है ये लेना पड़ता गार्डन, हमारे समाज की ओर से कोई अब तक कोई एक भवन भी नहीं है हमारे लिए, एक छोटा मोटा कमेटी हॉल या कुछ ऐसा हम सहयोग करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब हमको, ऐसी हम आशा रखते हैं। ये क्या एक समाज के लोग ही आए यहाँ पर या दूसरे समाज के भी? यहाँ अदर सभी समाज के हैं। हमारे पास गौली समाज बोलो बहुत सारे जो उसमें ये है, इसमें अयर गौली, लिंगायत गौली, वानी गौली, धनगर गौली, इस प्रकार यादव गौली, इस प्रकार सभी समाज के जो लोग यहाँ पर आए सो है। और हम सभी समाज की ओर से रिक्वेस्ट करते हैं सीएम साहब से कि हमारे गौली समाज की ओर उन्होंने थोड़ा ध्यान दे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। इस मंच से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस मंच पे यही कहना चाह रहा हूँ कि जो इस प्रकार हमारे कार्यक्रम होते हैं लेकिन जो हमारे को कोई सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन इसमें सहयोग दे। हम आशा रखते हैं आगे हमको जो है कार्यक्रम को जो सफल बनाने में हमको सहयोग देंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी जो है हमारे समाज के जो आज ये भी कार्यक्रम रखा जाएगा कि जो जितने पढ़े लिखे हैं उनको जो हम यहाँ पे सर्टिफिकेट देकर जो उनको ये करना सम्मानित करना चाह रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस हमारी ओर ध्यान देकर हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए वो भी हमारी ओर ध्यान देंगे तो हमारे समाज के पढ़े लिखे बच्चों के लिए भी कुछ स्कॉलरशिप बोलो या और कुछ ऐसा मिलने की हम आशा रखते हैं, क्योंकि हमारे को बीसी में अभी तक कोई ये नहीं मिला। बीसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन थोड़ा ध्यान देकर हमारे को बीसी में अगर कन्वर्ट कर दे तो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए सहयोग मिलेंगे बहुत काफ़ी। ये उम्मीद हम रखते हैं तेलंगाना सरकार से, तेलंगाना गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं सीएम साहब से कि हमारे समाज की और डेवलप करने में मदद करें। काफ़ी हम आशाएं रखते हैं। हम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है।
गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप आरटीसी मुलाजिमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने आज कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका से मुलाकात की और सूरत-ए-हाल से आगाह किया। इन कायदीन ने कल मुलाजिमीन की तरफ से इंदिरा पार्क पर दिए जाने वाले धरने को कांग्रेस की तायीद देने की अपील की। शास्त्रीपुरम बल्दी डिवीजन की रिजवान कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन फट जाने से लोगों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा है। मुकामी आवाम ने बताया कि रमजान से मुताल्लिका कॉर्पोरेटर मुसबाउद्दीन और असम्बली हल्के राजेंद्र नगर के इंचार्ज रहमत बेग से शिकायत की जा रही है, लेकिन अब तक ये मसला जू का तू बरकरार है। एक मकामी शख्स ने बताया कि उनका इलाका हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर सदन वसी की रिहायशगाह से कुछ दूर के फासले पर ही है। ड्रेनेज लाइन की फौरी तब्दीली की जरूरत है। साफ सफाई का भी इंतजाम इंतहाई नाकिस है। भी मौजूद है। ये शास्त्रीपुरम रिजवान कॉलोनी का है। पिछले रमज़ान से रमज़ान का पूरा महीना यही ऐसे ही पानी बहते रहा और यहाँ की लैंड डैमेज है। हर जने को यहाँ तक के ये रिजवान कॉलोनी के लीडरों को पूरे लीडरों को कंप्लेन दिए और यहाँ जो कारकुन है मिसबा कॉरपोरेटर साहब उनको दिए और रहमत अली बेग साहब को दिए। हर जनों को कंप्लेन दिए, जीएचएमसी में कंप्लेन दिए, मगर आज तक इसका कोई हल नहीं हुआ। पूरी लैंड डैमेज है, पूरी लैंड छोटी लैंड है, लैंड पूरी डैमेज है। बच्चों को यहाँ तक के परेशानी, वो डेंगी तक आ गया इसमें। ये गलीजात से इंसान में पूरी कुंडी उंडी हो गई। पूरा यहाँ की रोड साफ़ नहीं है, ना पूरा मोरी का पानी आ रहा, नल में भी मोरी का पानी आ रहा। एक तो पूरे मोरियाँ फूटे हुए, पूरी गली की पूरी लैंड फूटी हुई है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। अभी अपने रिजवान कॉलोनी में पाइप फूटा हुआ है, 6 महीने से जो है पाइप फूटा हुआ है। गाड़ियाँ जाके पाइप फूटा हुआ है, कोई भी देखने वाले नहीं है। आ रहे खाली सर्विस का काम है बोल रहे, चले जा रहे हैं। तो वो हिसाब से जो है गुजारिश है जल्द से जल्द जो है ये पाइपलाइनिंग का काम हो जाना चाहिए। भाई 8-9 महीने से शुरू है, मुरी का जो लाइन बंद है, पानी उसी बहते जा रहा है। कंप्लेन दिए बोलो। हम कंप्लेंट दिए कॉर्पोरेटर को, मिसबाउद्दीन भी आए थे, देखे हाँ कर देंगे काम, मगर काम तो नहीं शुरू हुआ। बोले आगे खाली देख लगे, ओसेज बह रहा, लोगों को तकलीफ़ हो रही, पानी बहुत बह रहा, मच्छर लो, बच्चों के तबीयत वगैरह बहुत ख़राब हो रहे, तबीयत बहुत ख़राब हो रहे। तो काम जो जल्दी शुरू नहीं हो रहा, नहीं देख रहे, नहीं कोई आ रहे नहीं, देख रहे नहीं, बस शुरू करेंगे बोल के कोई हाथ भी नहीं लगा रहे। शास्त्रीपुरम रिजवान कॉलोनी में यह हमेशा की परेशानी हो गई। 2 साल से पानी बहते जाते जा रहा। रिजवान कॉलोनी शास्त्रीपुरम, हमारे रिजवान भाई यहाँ के लीडर है, उनको ही बात बोले आए देखे करे। फिर मिसबा साहब को भी कंप्लेंट दिए, रहमत भाई भी आए, इलेक्शन के टाइम आए, कराता हूँ रोड डालते बोले नहीं डाला। खाली ऐसे टाइम चलते जा रहा। पीछे जो हमारे बाउंड्री के वॉल हैं, असद साहब का ही घर है यहाँ पीछे बाजू, अगली रोड उनकी लगती है, उनके सामने घर के सामने ये हाल है। तो फिर बाहर क्या काम करेंगे, उन्होंने क्या काम कर सकते। और ये बहुत ज़रूरी मैसेज पहुंचाना है पब्लिक को, भड़कावे में कुछ भी नहीं आना है। लेकिन ये काम होना हम आगू, काम हो रहा नहीं, कुछ भी नहीं, खाली चुप टाइम ख़राब हो रहा, बच्चे गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियाँ गिर जा रही, वो कुछ सब हो रहा। रोड दलाते बोले रोड नहीं दला रही, कुछ नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा कुछ। अगर हुआ तो बहुत से जल्द अच्छी मेहरबानी की बात है। मिसबा साहब से मेरी अपील है कि वो काम कराए, रहमत भाई से भी अपील है कि वो मेरे काम कराए, तवज्जो दे। हमारे बैरिस्टर रसूद्दीन अवीसी साहब से भी अपील करता हूँ कि वो काम कराए, पड़ोसियों का ख्याल करे। नामपल्ली कोर्ट ने टीवी9 के साबिक सीईओ रवि प्रकाश को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया। बंजारा हिल पुलिस ने रवि प्रकाश को कल गिरफ्तार करके जज की रिहायशगाह पर पेश किया था। उन पर एबीसी कंपनी के फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्जाम आयद किया गया था।
आरटीसी मुलाजिमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल आज दूसरे दिन में दाखिल हो गई, जिसके सबब आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज इतवार होने के बाद अगरचे के उसका शहर में कोई असर नहीं देखा गया, लेकिन कल जब सरकारी दफातर खुल जाएंगे सूरत हाल अबतर हो जाएगी। दशहरे की तातीलात बनाने के लिए अजला को जाने वाले मुसाफिरीन सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। कुशाईगुड़े के बशमुल कई बस डिपो से आज एक भी बस बाहर नहीं निकली। मुलाजिमीन भी अपने मुतालिबात को हुकूमत की जानिब से कबूल किए जाने तक हड़ताल जारी रखने पर बज़िद है। मुसाफिरीन को मेट्रो ट्रेन, ऑटो और कैब सर्विस पर इन्हिसार करना पड़ा है, लेकिन ऑटो ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स मनमानी किराया वसूल कर रहे हैं। इसी दौरान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरटीसी हैदराबाद जोन वेंकटेश्वरलू ने बताया कि महात्मा गांधी बस स्टेशन और जोबली बस स्टेशन से अजला, विमलवाड़ा, बांसवाड़ा, सिद्दीपेट, मेदक और निजामाबाद के लिए 900 से ज्यादा बसें चलाई गईं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।